सबको एक ही माप दिया गया है। उस बीज के साथ आप क्या करते हो वो निर्धारित करता है कि आपके विश्वास की मात्रा कितनी होगी। God is telling you, get out of your comfort zone, get out of your pity party, get out of your victim mindset and start speaking to your body, start speaking to your finances, start speaking to your children, start speaking to your situations. अपने बुरी परिस्थिति से बाहर आकर के अपने बारे में बुरा फील करने से बेहतर बाहर आकर के अपनी परिस्थिति से बात करना शुरू करो, अपनी सिचुएशन से बात करना शुरू करो। यानी छोटा विश्वास जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो बढ़ने लग जाता है। Great faith महान विश्वास believes the spoken word. बोले गए वचन पे विश्वास करता है। Luke chapter 17, I'll read from verses 3 to 6. Take heed to yourself. If your brother sins against you, rebuke him, and if he repents, forgive him. सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। And if he sins against you 7 times in a day and 7 times in a day returns to you saying, I repent, you shall forgive him. और यदि दिन भर में 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूं तो क्षमा कर। And the apostles said to the Lord, increase our faith. और प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। You need faith to forgive. क्षमा करने के लिए आपको विश्वास की आवश्यकता है। Here Jesus is calming the storms and multiplying bread and raising the dead and opening blind eyes and making the lepers clean. But apostles never said increase our faith. But here Jesus is telling them, you have to forgive your brother if he sins against you. And they're like, Lord, you have to increase our faith. यहाँ पर यीशु तूफान को शांत कर रहा है, रोटी को हजारों को खिला रहा है, अंधों की आंखें खोल रहा है। तब चेलों ने नहीं बोला कि हमारे विश्वास को बढ़ा। जब वो कह रहा है कि क्षमा कर अपने भाई को 7 बार, तो चेले कह रहे हैं प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा दे। Because sometimes it's easier to do miracles than to guard your heart. क्योंकि कई बार चमत्कार करना बड़ा आसान होता है अपने दिल को सुरक्षित रखने से ज्यादा। It's easier to go out and preach and tell people about Jesus, but to guard your heart, it's a lot of work. बाहर जाकर प्रचार करना, यीशु के बारे में लोगों को बताना बड़ा आसान है, पर अपने दिल को बचा के रखना इसमें बहुत मेहनत लगती है। Now in no way I'm saying that that's not important and I'm trying to minimize this. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब जरूरी नहीं है, इसको छोटा नहीं कर रहा हूँ। So जो प्रेरित हैं वो यीशु से क्या कह रहे हैं? Lord, प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। The apostles are telling the Lord, Lord, increase our faith. जो हम भी कई बारी कहते हैं प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। Which we also tell the Lord, Lord, increase our faith. It's a very good prayer. एक बहुत अच्छी प्रार्थना है। Lord, increase our faith. प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। And now, और अब look how Jesus answers. देखो यीशु कैसे उत्तर देते हैं। It's like अगर आप पहली बार इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ये प्रभु ने क्या बोला है। If you read this for the first time, you're like, what did the Lord just say? मतलब अगर कोई आज किसी प्रचारक को पूछेगा हम विश्वास में कैसे बढ़े तो क्या 40 दिन का उपवास कर। If someone asks a preacher today, how can we grow in faith? They'll say, fast 40 days. But they're asking Jesus, increase our faith, and look what Jesus says. वो यीशु से कह रहे हैं कैसे विश्वास को बढ़ाएं, और यीशु का उत्तर देखें। So the Lord said, if you have faith as a mustard seed, you can say to this mulberry tree, be pulled up by the roots and be planted in the sea, and it would obey you. प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते कि जड़ से उखड़ जा, समुद्र में जा लग जा, तो वो तुम्हारी मान लेता। क्या यीशु मसीह आप क्या कह रहे हैं? What are you saying, Jesus? वो कह रहे हैं हमारा विश्वास They are saying increase our faith. वो कह रहे हैं अगर यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता तो तुम इस तूत या शहतूत के पेड़ से कहते कि उखड़ जा। And he's saying if you had faith as a mustard seed, you would have commanded this tree, this mulberry tree, to be pulled up. See, one thing you have to understand is God has not given somebody great faith and somebody less faith and somebody a kilo faith and somebody 10 kilos faith. Everybody has received faith in the form of a seed. आपको ये समझना है परमेश्वर ने किसी को बड़ा विश्वास, छोटा विश्वास, 1 किलो विश्वास, 10 किलो विश्वास नहीं दिया। परमेश्वर ने सबको एक बीज के बराबर विश्वास दिया। Amen. Amen. सबको एक ही माप दिया गया है। All have been given the same measure. उस बीज के साथ आप क्या करते हो वो निर्धारित करता है कि आपके विश्वास की मात्रा कितनी होगी। What you do with that seed determines how much faith you will have. If you have faith
as a mustard seed you shall say. अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर विश्वास भी होता तो तुम कहते. See, sometimes the Lord speaks in kind of parables so that the people who really want to know it, they will know it. कई बार प्रभु ऐसे दृष्टांतों में बोले कि जो लोग सच में समझना चाहते हैं सिर्फ वही समझे. वो दृष्टांत में बोल रहे हैं. He's speaking this in a parable. कह रहे हमारा विश्वास बढ़ा. They're वो saying, कह रहा अगर increase तुम्हारा of- विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते उखड़ जा. यानी छोटा विश्वास जब इस्तेमाल किया जाता है तो वो बढ़ने लग जाता है. So he's saying even if you had faith like a mustard seed, you would have spoken to the mulberry tree. When a small faith is used, it starts to grow. हर किसी के पास उस राई के दाने के बराबर ही विश्वास दिया गया है पहले. मगर जब आप उस राई का जो विश्वास है, दाने का विश्वास, उसका आप कहना शुरू करते हो अपने पहाड़ों से. शहतूत का पेड़ क्यों कहा गया, पहले मैं आपको ये बताता हूं. Everyone has been given this mustard seed faith, and when you start to say it, when you start to use it, let me tell you why he spoke about a mulberry tree. When Jesus said two things allegorically, a mountain and a mulberry tree. यीशु ने दो बातें उदाहरण रूप में कही, एक पहाड़ और एक शहतूत का पेड़. Okay, a mountain is something that's visible from far. Very far, right? एक पहाड़ एक ऐसी चीज है जो बहुत दूर से ही नजर आता है. It's too big for you. आपके लिए बहुत बड़ा लगता है. Mulberry tree was a tree which looks as normal tree, but the roots of it goes many kilometers. It is impossible to uproot it. एक शहतूत का पेड़ एक ऐसा पेड़ है, दिखने में साधारण होता है पर उसकी जड़ें बहुत गहरी, बहुत दूर तक जाती हैं, उसको उखाड़ना बड़ा मुश्किल होता है. So speaking the word will deal with both of the problems in your life, those that look big and also those are hidden deep in roots. When you learn to speak to the mulberry trees and when you learn to speak to the mountains in your life, Jesus said that both of them are going to obey you. तो विश्वास का इस्तेमाल करने से और बोलने से दोनों चीजों को आप अपनी जिंदगी में सही कर सकते हो. वो चीजें जो बड़ी विशाल नजर आती हैं और वो चीजें भी जो छुपी हुई हैं, बहुत गहरी हैं, दोनों को आप अपनी जिंदगी में सही कर सकते हो बोलने के द्वारा. और होता क्या है कि आपका पहाड़ औरों को भी दिखाई देता है, मगर आपका शहतूत का पेड़ केवल आपको दिखाई देता है. And what happens is others can also see your mountains, but your mulberry trees only you can see. There is an addiction you're battling, nobody knows but you. कोई बुरी लत है जिससे आप जूझ रहे हो, किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको ही पता है. The roots go deep in. उसकी जड़ें गहरी हैं. There's an emotional pattern. एक भावनात्मक There are पैटर्न है, things that are hidden underneath. छुपी हुई चीजें हैं नीचे. And Jesus is saying, और यीशु कह रहे हैं start using the faith that you have. वो विश्वास जो तुम्हारे पास है उसको इस्तेमाल करना शुरू करो. And how do you do that? और कैसे करोगे? You start to open your mouth and start speaking to those mulberry trees. जब आप अपना मुंह खोलोगे और उस शहतूत के पेड़ से बोलना शुरू करोगे. प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा. Lord, increase our faith. अगर तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहोगे उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और वो तुम्हारी बात मानेगा. If you had faith like a mustard seed, you will say to this mulberry tree, be uprooted, go into the sea, and it will obey you. That means you will start using your faith in the little things first. इसका मतलब अपने विश्वास को आप पहले छोटी चीजों में इस्तेमाल करना शुरू करोगे. And as it increases और जब वो बढ़ता है to the bigger things. तब बड़ी चीजों में इस्तेमाल करोगे. Amen. और जब आप करोगे तो लोग आपको पागल बोलेंगे, And when you do that, people will call you crazy. आपको फैनेटिक बोलेंगे, They will call you fanatics. आपको पता नहीं क्या क्या बोलेंगे. What all they'll call you. Amen. मगर सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग. काफी लोग ग्रसित हैं इस रोग से. But the greatest disease is what will people think, what will people say. And How many does people it suffer. matter what people are gonna say? क्या फर्क पड़ता है लोग क्या बोलें. Amen. Amen. क्योंकि वो समय आता है Because the time comes when they're gonna see. जब वो देखेंगे.
When your faith is going to become a mighty tree. जब आपका विश्वास एक बड़ा पेड़ बन जाएगा. Amen. And birds of the air come from different places to find shelter and to eat the fruit of that faith. और They're gonna see. आकाश के पक्षी आएंगे उसमें बसेरा करने के लिए और भोजन पाएंगे, तब देखेंगे लोग. Amen. Are you alive? जीवित हैं. There is one thing that devil will fight, एक बात है जिससे शैतान लड़ेगा, and that is that word will not go in your heart. और वो ये है कि वचन आपके दिल में ना चला जाए. Devil doesn't mind you standing in the lines for lay hands, शैतान को फर्क नहीं पड़ता आप घंटों ले हैंड की लाइन में खड़े रहो, but the word to go in your heart, लेकिन वचन आपके दिल में चला गया, no. नहीं. They should not hear the word and it goes in their heart, because the day word enters their heart, they are gone. ये वचन सुनने ना पाए, इनके दिल में वचन उतरने ना पाए, क्योंकि जिस दिन उतर गया मेरे हाथ से चले गए. Because the word is coming for you. क्योंकि वचन आपके लिए ही आ रहा है. And every word has the power to transform your coming generations. One word of God. और हर एक वचन में ये सामर्थ्य है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों को बदल के रख दे. एक वचन में. In the midst of every sermon is the proceeding word of the Lord. हर एक प्रचार के बीच में परमेश्वर की ओर से भेजा गया वचन होता है. Amen? Amen. When we do something long enough, जब हम कुछ बहुत समय तक करते हैं, we get into the routine of it. हमें उसकी आदत पड़ जाती है, रूटीन बन जाता है. And that loses value. The awe is gone, the honor is gone. Now we do it as a religious routine. And when you do it as a routine, you don't benefit from it anymore. और जो उसके लिए हमारे दिल में पहले आदर था, वो गवा देते हैं, वो ऑनर गवा देते हैं और अब एक रूटीन की तरह उसको करते हैं. You should understand that every time we gather together, आपको समझना है जब कभी हम मिलते हैं साथ, there is a specific word from the sermon that God will highlight to you because He knows your situation. वचन के समय में, प्रचार के समय में एक खास भाग होगा जो प्रभु आप पर प्रभावित करेगा, क्योंकि वो आपसे बात करना चाहता है, आपकी परिस्थिति को जानता है. पर वो खास भाग आप नहीं पकड़ पाओगे अगर आप ध्यान धरकर उसका वचन नहीं सुनते. But you will not be able to catch that special part that God is sending for you if you're not hearing His word intently. Amen. आपने सुना आज उन जो बहन ने गवाही में कहा कि Psalm 91 की टीचिंग में कहा गया था, मैं अपना सर तकिए में, that was for her, got delivered. One word, bam, came to her, got a deliverance. That sister heard that word, उन्होंने वचन सुना in the teaching of Psalm 91, उन्होंने पकड़ लिया और उससे आजाद हो गई. So वो मसीह मत बनना जो कहते हैं आज तो मजा आ गया, आज तो मतलब मजा आ गया वचन में. अच्छा क्या सीखा आपने? वो पता नहीं है मगर मजा आ गया. Yeah, so don't be those believers who say, I really enjoyed today. What did you learn? I don't know what I learned, but I really enjoyed today. और शैतान बोलेगा ऐसे मसीहों को देख के मुझे मजा आ गया. And the devil will say, looking at such believers, I really enjoyed. यही तो वो चाहता है. That's what he wants. वचन में लिखा है कि एक बीज बोने वाला बीज बोने गया, कुछ रास्ते के किनारे गए और तुरंत चिड़िया आई और उसको उठाकर ले गई. और यीशु ने कहा इस दृष्टांत का अनुवाद ये है कि बीज बोने वाला वचन को बो रहा है और जो सड़क के किनारे गिरे वो एक तरह का हृदय दर्शाता है लोगों का. सड़क के किनारे आपको क्या मिलता है? कूड़ा करकट. वो वचन पर ध्यान नहीं देते, वो उसको कूड़े की तरह जानते हैं. नाउ मुझे पता है जो मैं कहना जा रहा हूं वो कई लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, मगर मैं फिर भी कह रहा हूं. कलीसिया की दिक्कत ये इसलिए है because we have kept the prayers of men of God above the word of the living God, and that's the problem. हमने परमेश्वर के दासों की प्रार्थना को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख दिया है, and this is the problem of the church. बीज बोने वाला बीज बोने के लिए गया. The sower went to sow the seed. There is nothing that substitutes the word of the living God. कोई भी चीज जीवित परमेश्वर के वचन की जगह नहीं ले सकता. मेरी सेवकाई तब सफल है जब मैं आपको एक परमेश्वर के वचन का प्रेमी बना दूं. जिस दिन वो हो गया मैं चला जाऊंगा, मगर विश्वास की ये लेगेसी चलती जाएगी, उसको कोई रोक नहीं सकता. My ministry is successful the day I make you lovers of the word of God. Even when I go away, this legacy of faith will carry on and nobody will be able to stop it. Amen.
सो यीशु ने कहा चिड़िया शैतान को दर्शाती हैं, और जब वचन उन हृदयों में गिरा जो बहुत हल्का जानते हैं उसको, जो कोई कीमत उसमें नहीं देखते, जैसे सड़क के किनारे आप देखते हैं सुबह जब वो झाड़ू मारने वाला आता है, वो झाड़ू तो उसमें गुटखे के पैकेट हैं, उसमें सारा कूड़ा है, वो साइड है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे कुछ मसीह हैं, वो प्रीचिंग में वो वैल्यू किस में देखते हैं? केवल ले हैंड में, प्रार्थना में, मुझे रुमाल दे दो, मुझे तेल दे दो। मगर जब प्रचार होता है, जो परमेश्वर का वचन है, उस पर उसको वो कीमती नहीं जानते, और इसीलिए वो वैसा जीवन नहीं जी पाते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है कि वो जिए। Because many believers, their attention is on the oil they can get, the lay hand prayer they can get, and they do not honor the word of God. They treat it like garbage, and that's why they're not able to receive what God wants to give them. Don't misunderstand, आप हमें गलत मत समझिए, हम भी anointing oil सर्विस करते हैं, हम भी lay hand prayer करते हैं, we do lay hand prayer. मगर वो आपको इसीलिए यीशु ने, जो कमजोर है उसके साथ कमजोर बन जाओ, With the weak you become वहां weak. से शुरू होता है। That's where it मगर starts. वहां से आपको लेकर आना है कि आप अपने विश्वास में बलवंत हो जाओ और अपने पिता से खुद लेना सीख लो जो आपका है विश्वास। But we have to bring you out of that place to that place where you are strong in faith and you learn to receive from your Father what belongs to you. अगर किसी का कोई बच्चा है और माता पिता हमेशा उसे गोदी में रखे और कभी चलने ना दें उसे, और वो बड़ा हो गया और हमेशा, तो वो बहुत अच्छे माता पिता नहीं है। If there's a child and his parents always carry him in their lap, never allow him to walk, then they're not good parents. वो बड़ा हो गया अब 8-10 साल का, Now he is a grown 8 मगर अब years kid. अपाहिज हो चुका है क्योंकि कभी उसे खुद चलना नहीं सिखाया गया। इतने सारे मसीह आत्मिक रीति में आज अपाहिज हैं क्योंकि केवल किसी और के विश्वास में उनका विश्वास है। नहीं, आज परमेश्वर आप सबको कह रहा है अपना विश्वास में बढ़ना आपकी खुद की जिम्मेदारी है, और विश्वास परमेश्वर के वचन से और वचन के सुनने से होता है। Now the child is 10 years old but is handicapped, and many believers are handicapped. They are living on borrowed faith, but God wants you to grow and walk in your own faith, and faith comes by hearing the word of God. I'm telling you that if I just build your faith on me and I die, I'll be a miserable leader, because then the entire thing is gone. अगर मैं आपका विश्वास अपने ऊपर बना दूं और फिर मैं मर जाऊं तो ये सब बंद हो जाएगा, आपका विश्वास खत्म हो जाएगा। But if I can make you the lovers of the word of God, मैं आपको बता रहा हूं अभी इंडिया में क्या चल रहा है। बच्चा परमेश्वर के वचन की घोषणा कर रहा है, और ये जो अब बेदारी परमेश्वर के वचन की है, ये रुकने वाली नहीं है। कोई इसको रोक नहीं सकता, क्योंकि ये बेदारी किसी व्यक्ति के बारे में नहीं है, किसी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं है, किसी मैन ऑफ गॉड के बारे में नहीं है, मगर परमेश्वर के वचन के बारे में है। और बाइबल कहती है द वर्ड ऑफ द लिविंग गॉड अबाइड्स फॉरएवर। What is happening in India? Every child is confessing the word. Believers are putting the word in their mouth and receiving their breakthrough. And this revival is not about any man of God. It's about the word of God. I've sent my word मैंने अपने वचन को भेजा and healed your diseases और तुम्हारे रोगों को चंगा किया है and redeemed you from your destruction. और विनाश से तुम्हें बचा लिया है। इसीलिए यीशु मसीह उस सूबेदार के विश्वास को देखकर यीशु आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि उस सूबेदार ने कहा यीशु तुझे मेरे घर में आकर मेरे नौकर के ऊपर ले हैंड करने की जरूरत नहीं है, केवल वचन बोल दे और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। This is why Jesus marveled at the faith of the centurion. He said, you don't have to come into my house, just say the word only and my servant will be healed. If you want a lasting fruit in this nation, अगर इस देश में बने रहने वाला फल चाहिए, we have to take people to the pure word of God. तो हमें लोगों को परमेश्वर के पवित्र वचन पर ले जाना होगा, उसके शुद्ध वचन पर ले जाना होगा। Amen. और ये सेवकाई प्रभु ने मुझे दी है। And this ministry the Lord has given to me. If you look at me, then I'm a failure. अगर आप मेरी ओर देखते हैं तो मैं फेलियर हूँ। But if I can teach you to look at the word, लेकिन अगर मैं आपको सिखा पाऊँ वचन की ओर देखना, then I've done my job. तो मैंने अपना काम कर लिया। Amen. क्योंकि
मैंने आपको बताया था एक समय ऐसा था जब जूडा को फीवर हुआ और वो झटके मारने लगा, I told you there was a time when Judah had fever and he was having seizures. क्योंकि जो हम आपको सिखाते हैं हम भी वही करते हैं. Because what we teach you, we do What do ourselves. we do when the enemy comes against us? हम क्या करते हैं जब दुश्मन हमारे खिलाफ आता है? We speak the word. हम वचन को बोलते हैं. हम वचन की घोषणा करते हैं. We declare the word. That is what we teach you. हम यही आपको भी सिखाते हैं. Because that works. क्योंकि ये काम करता है. Amen. और सूबेदार यीशु से कह रहा है तू बस वचन बोल दे प्रभु, वचन बोल दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा. मुझे कोई एविडेंस नहीं चाहिए, मुझे कोई गरम ठंडा नहीं लगना, मुझे कोई चिन्ह नहीं चाहिए, तू वचन बोल दे और वो काफी है. And the centurion tells Jesus, you speak the word only. I don't need an evidence. I don't need the experience of warmth or cold. You just say the word and I'll have it. That's enough. And Jesus like, oh, wow. और यीशु कहते हैं वो wow. ऐसा विश्वास तो मैंने इज़राइल में भी नहीं देखा. I have not seen such a faith in the entire Israel. Great faith. महान विश्वास. Hear this. सुनिए. Great faith महान विश्वास. believes the spoken word. बोले गए वचन पे विश्वास करता है. Amen. Amen. कुछ सीख रहे हैं हम आज? Are we learning something today? Put Revelations 5:10. प्रकाशित वाक्य 5 उसका 10. आपके पिता की इच्छा क्या है आपके लिए यहाँ पर पृथ्वी पे? What is the will of your father here on the earth? हाँ, कई लोग बोलते हैं कैसे चल रही है? You ask some people how's it? They say just ठीक ही है, surviving, it's okay. कट रही है. Doing what we can do. हाँ. क्या लिखा है? What does it say? And have made us. Have made us यानी हिंदी में I don't know who has translated पर हमें, अस मतलब हमें, उन्हें नहीं, और हमें हमारे परमेश्वर के लिए राजा, फिर राज्य कर दिया, राजा और याजक बनाया. और हम, इंग्लिश में वी है, यहाँ वे पता नहीं क्यों कर दिया. पता वे क्यों किया? क्योंकि थियोलॉजी खराब है. Because they think they are those people who have gone to heaven. क्योंकि इनको लगता है ये वो लोग हैं जो स्वर्ग चले गए. English Bible says we. अंग्रेजी में लिखा है हम. Say we. बोलो हम. अभी सारे लखनऊ वाले बन जाओ, बोलो हम. हम पृथ्वी पर राज्य करेंगे. We will reign on the earth. You are called to rule and reign. That is your DNA. That is why your father designed you. आप बुलाए गए राज्य प्रभुता करने के लिए. ये आपकी बनावट है, इसी के लिए आपके पिता ने आपको बनाया है. Amen. कितने लोग राज्य करना चाहते हैं? How many people want to reign? Amen. That means whatever comes against you, you will be able to subdue it. That was the original intent of God for mankind. इसका मतलब जो कुछ आपके विरुद्ध आता है आप उस पर प्रभुता करेंगे. ये आपके बनाए जाने के पीछे परमेश्वर का मकसद था. Oh, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ. प्रभु कह रहा है प्रभुता कर उस डिप्रेशन के Oh, ऊपर. I'm very depressed. The Lord is saying, rule over that depression. आप क्यों बनाए गए थे? Why were you created? राज्य और प्रभुता करने के लिए. To rule and reign. Have you heard that we were created to worship? क्या आपने सुना है कि हम आराधना करने के लिए बनाए गए हैं? It's a very famous teaching. बहुत फेमस शिक्षा है. Yes, we will worship God. हाँ, हम परमेश्वर की आराधना करते That's a हैं. privilege. हमारा सौभाग्य है. The Bible doesn't say that. When God made us, God said, "Oh man, let me make some worshippers." लेकिन बाइबल ये नहीं कहती कि परमेश्वर ने जब बनाया हमें तो उसने कहा कुछ आराधना करने वालों को बनाता हूँ. आप जानते हो हम में से कई लोग परमेश्वर को केवल तब धन्यवाद देते हैं जो हमारे साथ अच्छा होता है. You know, many of us only thank God when something good happens to us. मगर अनंत में आपको पता चलेगा But only in eternity you will see. कि क्या कुछ होना था और परमेश्वर ने वो नहीं होने दिया. और आप तब वो समझ पाओगे अनंत में कि उसकी कीमत कितनी बड़ी है. What all was going to happen that the Lord did not let happen in your life, and you will understand how great the cost of that is. और वहां पे आपको पता लगेगा. And then you will know. क्योंकि न्यूज में केवल वो न्यूज आती है जो फ्लाइट क्रैश कर गई. न्यूज वो नहीं बताती जो 10 करोड़ फ्लाइट सेफली लैंड करी, क्योंकि वो न्यूज नहीं है ना. Because the news only reports the flight that crashed. The news does not talk about the millions of flights that landed safely, because that's not news. कितनी बार
आप मीटिंग में आए, आपके शरीर में कुछ बन रहा था, वो प्रार्थना में घुल गया, आपको पता भी नहीं चला। So many times, एक्सीडेंट जो होने थे, जो कभी नहीं हुए, जो आपके घर के विरोध में प्लान्स बने, हथियार बने, जो कभी सफल नहीं हुए, वो हमें केवल अनंत में पता चलेगा जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया है। the accidents, the plans, the weapons that were created against you that were not allowed to function against you, we will only know them in eternity. प्रभु हमारा विश्वास बढ़ा। Lord, increase our faith. प्रभु कह रहा The है Lord is मेरा वचन बोलना शुरू कर, Start speaking my word. मुझसे प्रार्थना मत कर। Don't pray to me. सोचो अगर विश्वास एक बीज की तरह है, प्रभु बता रहा है, Imagine if faith is like a seed और that the Lord आप is- देखो कि एक किसान है and you see a farmer और वो एक बीज को आगे रखे रहा है, हो प्रभु इस बीज को बढ़ा, प्रभु जी इस बीज को बढ़ा। and this farmer takes a seed and says, Lord, increase this seed, Lord. तो क्या बोलोगे आप? What will you say? क्या बोलोगे? What will you say? क्या करो? What do you do? प्रार्थना करके बढ़ेगा वो बीज? Will the seed grow by praying? क्या करना पड़ेगा उसको? What do you have to do? बोना पड़ेगा। You have to sow the seed. जो एक शारीरिक बीज का बोना है, वो इस आत्मिक बीज का कहना है। So what is to a physical seed, what is sowing to a physical seed is speaking to the spiritual seed. When you speak the word, you sow the word. जब आप वचन को बोलते हो, आप वचन को बोते हो। पूरा परमेश्वर का राज्य is about the seed. The entire kingdom of God is about the seed. विश्वास आपके उन अदृश्य हाथों की तरह है, जितने बड़े हाथ बना लोगे आत्मा में, उतना बड़ा पकड़ पाओगे जो परमेश्वर आपको दे रहा है। Faith only receive what God has already given by grace. Faith is like invisible hands. The greater you make your hands, the more you are able to grasp. विश्वास वही पकड़ पाता है जो परमेश्वर पहले से दे चुका है। Amen. सोचो इस बिल्डिंग के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगाया है जहां 1,00,000 मेगा टन बिजली बन रही है, Imagine there's a transformer outside the building which has lakhs of tons of electricity. मगर जो तार आ रही है But the wire that's coming वो 1000 वाट ले सकती है। can handle only 1000 watts. तो अंदर कितनी बिजली आएगी? So how much electricity can we have here? 1000 वाट। 1000 watts. तो क्या डिसाइड कर रहा है या क्या ये बात तय कर रहा है कि अंदर कितनी बिजली आएगी? बाहर जो ट्रांसफार्मर है या जो तार उसको अंदर लेकर आ रही है? So tell me, what is deciding how much electricity will flow in the transformer outside or the cable connecting it? विश्वास आपके उस तार की तरह है Faith is like that जो wire परमेश्वर की सामर्थ्य से आपको कनेक्ट करता है। that connects you to the power of God. जितना विश्वास डेवलप करोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में फ्लो करने लग The जाएगी। more you develop your faith, the more the power of God will work in So your it's life. not God who decides, परमेश्वर नहीं तय करते, you decide आप तय करते हो। how much you will be able to receive. कितना ग्रहण कर पाओगे आप? कितने लोगों ने वो विधवा की कहानी सुनी है? एलाइशा एक विधवा के पास गया। How many have heard the story of that widow? ओके, Elisha. अब वो जो भविष्यद्वक्ता है उसने कहा कि जा बर्तन ले आ। The prophet said, "Go and get vessels." क्या उसने ये कहा 10 लीटर के लिए बर्तन ले आना? Did he say get vessels for 10 या liters? प्रभु तुझे आज 20 लीटर तेल देना चाहता है? Or God wants to give you 20 liters oil? तेल बर्तन के साइज के अनुसार भेजा परमेश्वर ने। God sent the oil according to the vessels. जब बर्तन का साइज खत्म हो गया, तेल बहना भी खत्म हो गया। When the vessels were finished, the oil stopped. As we grow our capacity to receive, we'll be able to receive more. जब हम अपनी ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, तो हम और ग्रहण कर पाते हैं। Okay, ठीक है। Let's go to James. बोलो, this word is for me, for my family, and my coming generation. बोलो, ये वचन मेरे लिए है, मेरे परिवार के लिए है, और मेरे आने वाली पीढ़ियों के लिए है। Okay, now hear this. James chapter 3 verses 2 and 4. For we all stumble in many things. याकूब 3 उसका 2 से 4, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हम सब, he is including himself. The apostle James who writes this says we all stumble in many things. अपोस्टल जेम्स जो लिख रहे हैं वो अपने आप को शामिल करते हुए कह रहे हैं कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है। If anyone does not stumble in word, he is a perfect man. Abel
also to bridle the whole body. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। यानी परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर आप अपनी जीभ पर लगाम लगा सकते हो तो आप अपने पूरे शरीर पर भी लगाम लगा सकते हो। The word of God is saying if you can bridle your tongue, you can bridle your entire body. Are you with me? How do you control your body? आप कैसे अपने देह को नियंत्रित कर सकते हो? Through your tongue. अपनी जुबान के द्वारा। So your tongue is what controls your body. आपकी जुबान आपके शरीर पर नियंत्रण करती है। हमारा ना बिल्कुल बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता। Oh, I don't feel like reading the Bible at all. हमारा मन ही नहीं करता। Oh, I don't feel like. हम तो पढ़ ही नहीं सकते। I cannot read. हमारा तो बाइबल पढ़ने का मन ही नहीं करता। I don't feel like. इतनी बार बोल दिया You said it कि so जैसी many times. बाइबल खोली, The moment you open the Bible, you fall asleep. क्योंकि शरीर को ये बोल बोल के शरीर ने, आपको पता है आपका शरीर सुनता है। Do you know your body hears you? अगर यकीन नहीं है तो आज घर जाना और 200 बार एक कमरे में बैठ के बोलना, हाय मैं कितना डिप्रेस्ड हूं, हाय, और देखना कितना अच्छा लगेगा आपको। Your brain will start releasing chemicals because your body is voice activated. आपका ब्रेन वो केमिकल बनाने लगेगा क्योंकि आपका शरीर वॉइस एक्टिवेटेड है। Do you know that? Many people don't know. बहुत से लोग नहीं जानते। Okay, before I go here, put Proverbs 6:2. नीति वचन 6:2। देखते हैं किसने बांधा हुआ है आपको। अरे आपको नहीं पता, हमारे परिवार को बांधा हुआ है। Oh, you don't know our family is bound. ओहो, तू अपने ही मुंह के वचनों से फंसा, You are बंधा, snared. और अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। You are snared by the words of your mouth and you are taken by the words of your mouth. Whose words? किसके शब्दों से? Your words. अपने ही शब्दों से। अरे मुझे तो नींद ही नहीं आती रात को। Oh, I'm not able to sleep अरे at मुझे तो night. नींद ही नहीं आती रात Oh, I को। can't sleep at night. रात हुई, It's night. बॉडी कह रही है सोने मत देना The इसे, body is saying don't let him sleep क्योंकि इसने बार बार बोला है इसको नींद नहीं आती। because he said it again and again. He cannot sleep at night. For you shall declare a thing and it shall be established for you. क्योंकि जिस बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित हो जिस जाएगी। बात की, बाइबल ये नहीं कह रही जिस अच्छी बात की तू घोषणा, जिस भी बात की तू घोषणा करेगा वो तेरे लिए स्थापित हो जाएगी। The Bible is not saying whatever good you declare will be established. Bible is saying whatever you declare will be established for you. जो अपने मुंह को नियंत्रण में रख सकता है वही एक सिद्ध मनुष्य है। He who keeps his mouth under control is a perfect man. और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। And he can bridle the whole body. अब ये सुनो, Now hear this. जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उसकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Put that picture. Okay, आपने देखा घोड़े में लगाम लगती है। You see, they put bridle in horses' mouths. तो जब लगाम लगाते हैं घोड़े के मुंह पे, So when they bridle the तो horse, आप जहां मर्जी घोड़े को वहां ले जा सकते they can turn the horse हैं। wherever राइट they ले want. जाना है तो राइट ले जाओ, To the लेफ्ट। right, to the left. अगर शैतान आपके मुंह पे लगाम लगा दे Now, if the और आपसे वो वचन बुलवाए जो वो चाहता है, तो वो आपका जीवन वहां ले जा सकता है जहां वो ले जाना चाहता है। now if the devil can put bits in your mouth and make you say what he wants you to say, he can take your life where he wants to take your life. अरे हमारा तो 15-16 तारीख तक आते आते ना सारा पैसा खत्म हो जाता है। Oh, by the 15th, all our money vanishes away. ओके, हालेलुया। जो थोड़ा चल जाता 22-23 तक, वो 15 में खत्म हो जाएगा। That which would have lasted till 22nd, now it'll finish by 15. See, I know we are laughing and it's funny, मुझे but पता है it's हम हंस true. रहे हैं, मजाक ही लग रहा है, लेकिन ये सच है. ये सिद्धांत है, जानो ये परमेश्वर के राज्य का सिद्धांत है। Know that this is a जिस बात की principle. घोषणा आप करते हो वो आपके जीवन में स्थापित की जाती है। What you decree and declare is established in your life. ओके, आप घोड़ों के मुंह पे जब लगाम तो कहीं भी मोड़ सकते हैं। When you bridle the horse's mouth, you can turn them wherever you want. So devil, all that devil wants is your mouth। शैतान को बस आपका मुंह चाहिए. कहता जीभ दे दे मुझे, Just give me your tongue. तेरी जीभ मेरे पास आ गई If I can control your tongue, तो मैं जहां मर्जी तुझे वहां ले जाऊंगा। I can take you wherever I want. मुझे तुझे एडिक्शंस में ले जाना है तो एडिक्शंस में ले जाऊंगा। If in addiction, तुझे बीमारियों में ले जाना है तो बीमारियों में ले sickness, I can जाऊंगा। take you there. तुझे मृत्यु की तरफ ले जाना है तो towards मृत्यु की तरफ। death, I can take you there. कितने सारे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों के ऊपर मृत्यु बोलते हैं हर So many parents speak death over their children all the time. अरे तो गधा है, नालायक गधा।
He's a fool. वो था नहीं, वो था बहुत ब्रिलियंट, मगर was not. बोल बोल के उसको गधा कर दिया। He was और intelligent. बाद में जब वो गधा बन गया, कह रहा मैंने बोला ही था ये गधा है, कुछ करेगा नहीं लाइफ में। He was intelligent, but you spoke over the child so much, made him foolish, and now when he's acting foolish, you say, "I told he's fool." एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा तो होना पड़ेगा। You'll have to stand before God one day. Put Matthew 12:36. मत्ती 12:36. हो क्या सीख रहे हैं हम कुछ? Are you learning anything? बोलो, this word is for me, बोलो ये वचन मेरे लिए है, for my family, मेरे परिवार के लिए, and for my coming और मेरी generations. पीढ़ियों के लिए. Okay, but I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it और मैं in the तुमसे day of judgment. ये यीशु मसीह ने कहा है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे. Jesus has said this. What have you been speaking आप to yourself? क्या बोलते आए हैं अपने आप से? देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। Look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Can you put a picture of a? देखो, इसको बोलते हैं रडर। और एक शिप दिखाओ, ये देखो, इतना बड़ा जहाज This big एक ship छोटे से रडर से कंट्रोल किया जाता is है। controlled by a small rudder. अब अगर जो व्यक्ति बैठा है, अगर वो राइट घुमाएगा तो कहां जाएगा जहाज? Now the guy sitting, if he turns the rudder right, with अगर लेफ्ट घुमाएगा तो कहां जाएगा? turns it left, तो वचन कह रहा है, the word is saying, जो ये रडर जहाज के लिए है, वो आपकी जीभ आपके जीवन के लिए है। अगर आपका जीवन गलत दिशा में जा रहा है, तो अपने जीभ की दिशा को मोड़ दो, क्योंकि जिस दिशा में आपकी जीभ है, उसी दिशा में आपका जीवन भी जा रहा है। the word is saying what the rudder is to the ship, so the tongue is to your life, to your body. Turn the tongue in the direction where you want to take your life. So many Christians don't have a problem. It's not about a big devil. बहुत सारे मसीहों की उनकी दिक्कत ये नहीं कि शैतान बहुत बड़ा है, It's their big mouth. उनका बड़ा मुंह दिक्कत है उनकी, It's their big uncontrolled mouth. उनका वो बड़ा बिना लगाम का मुंह. Hallelujah. Say, this word बोलो ये वचन is for me, मेरे लिए है, my family, मेरे परिवार के and लिए my coming generation. और मेरी पीढ़ियों के लिए. If you can train your tongue, अगर- your body will obey your tongue. अगर आप अपनी जीभ को प्रशिक्षित करोगे तो आपका शरीर भी आपकी जीभ की बात मानता है. अगर आपका शरीर डिप्रेस फील कर रहा है, If your मगर body- आप जीभ से बोलोगे, थैंक यू फादर, प्रभु मैं तेरे आनंद से भरा हुआ हूं, तेरे जॉय से भरा हुआ हूं, आपका शरीर आपकी टंग को फॉलो करेगा, और आपका शरीर वो केमिकल्स, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन जो कोई रिलीज करने लग जाएगा, और आपको आनंद महसूस होने लग जाएगा। If you are feeling depressed in your body, but you start to say to the Lord, thank you Lord, I thank you for your joy that I'm experiencing, your body will start to make all those chemicals you need to experience joy. यही तो बाइबल हमें सिखा रही है। That's what the Bible is teaching us. What rudder is to a ship, your tongue is to your body. जो पतवार एक बड़े जहाज के लिए, वो आपकी जीभ आपके शरीर के लिए. क्यों आपको लगता है दाऊद एक व्यक्ति जो लड़ाइयों के बीच में है? Why do you think a man David who was in the middle of wars, आपने देखा जब बैटल में जो लोग जाते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है उनके जिंदा, और दाऊद कहता है, I will not die but live and declare the work of my God. David, a man surrounded by wars, he says in the middle मैं of those मरूंगा wars, नहीं, मगर जीवित रहूंगा और अपने परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। I will not die, I will live and declare the works of my Lord. अरे दाऊद भैया क्या चल रहा है? अरे पता नहीं, देखो जिंदा बच के आते हैं इस बार की नहीं आते हैं, पता David- चला कोई मिसाइल पड़ जाए, तलवार चल जाए। David, what's happening? I don't know if I'll survive this time. What if a missile comes or वो something? कहता है मैं मरूंगा नहीं, He says, I will not die, मगर जीवित रहूंगा। but I will live. क्यों?
Why? He knows this. वो जानता है। I will say of my Lord, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, He is my refuge and my fortress. वो मेरा शरण स्थान और My मेरा गढ़ God, है। in Him will I trust. मेरा परमेश्वर जिस पर मेरा भरोसा है। Surely He will deliver me from the snare of the fowler and from the perilous pestilence. जिससे वो मुझे बहेले के जाल से और महामारी से बचाएगा। He shall cover me under His feathers, and under His wings I shall take refuge. 1,000 shall fall at my side, and 10,000 at my right hand, but it shall not come near me. वो निश्चय अपने पंखों तले मुझे ढांप लेगा। 1000 मेरे बाईं ओर, 10,000 मेरे दाईं ओर भी गिर जाए तो भी वो बुराई, वो हानि मेरे निकट ना आएगी। What do you say? आप क्या कहते हैं? God is telling you, get out of your comfort zone, get out of your pity party, get out of your victim mindset and start speaking to your body, start speaking to your finances, start speaking to your children, start speaking to your situations. अपनी बुरी परिस्थिति से बाहर आकर के, अपने बारे में बुरा फील करने से बेहतर बाहर आकर के अपनी परिस्थिति से बात करना शुरू करो, अपनी सिचुएशन से बात करना शुरू करो। Amen. पता नहीं क्या होगा। I don't know what will happen. क्या होगा? What will happen? दाऊद कहता है, David says, करुणा और भलाई जीवन के अंत तक मेरा पीछा करती रहेगी। उसको पता था क्या होगा। His goodness and mercy will follow me all the days of my life. He knew what will happen.